السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز، میں ہوں علی سرور۔ بہت اہم بیان فضل الرحمان صاحب کا کہ دبئی ملاقات میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ دبئی میں ملاقات ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب کی اور مریم بی بی کی، اور اس پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے انکشاف یہ کیا ہے کہ ریٹائرڈ جنرل فیض حمید نے انہیں پہلے سینیٹر اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا جی چیئرمین سینٹ بنایا جائے گا، جو یہ پیشکش کی تھی، لیکن انہوں نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، نون لیگ کی سینئر رہنما ہیں، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی۔ بہت شکریہ میڈم، کیا کہیں گی خاص طور پر الیکشن کے حوالے سے جو گو مگو کی کیفیت تھی؟ اب وزیر دفاع کا بیان سامنے آ گیا خواجہ آصف صاحب کا کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوں گے، لیکن اکتوبر میں گرمی ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں بہتر رہے گا۔ کیا فیصلہ ہو چکا کہ اسی سال الیکشن ہوں گے اور حکومت مدت پوری کر کے گھر چلی جائے گی اور نگراں سیٹ اپ آ جائے گا؟ یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے بہت پہلے کا، پارٹی کے اندر بھی اور باقی دیگر قائدین سے جو پی ٹی ایم میں شامل جماعتیں ہیں کہ 12 اگست کو حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور اسمبلی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد نگران کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور نگران حکومت جو ہے وہ اکتوبر تک یہ الیکشنز کے ہونے تک تمام امور انجام دے گی اور اس کے بعد الیکشن آئے گا۔ الیکشن کے لیے تقریباً تمام پارٹیوں نے اپنی اپنی تیاری شروع کر دی ہے۔ پی ڈی ایم میں شامل 13 جماعتیں، اس کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتیں جو ملک میں ہیں، سب نے الیکشن کی تیاری کے لیے ابتدا کر دی ہے اور ٹکٹوں کے حصول کے لیے لوگوں نے درخواستیں بھی دینی شروع کر دی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوگا اور حکومت اپنی مدت وقت ختم کرے گی اور اس کے ساتھ تمام مسئلے ٹائم پہ الیکشن ہونے سے حل ہو جائیں گے۔ اچھا طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، لیکن میاں صاحب چونکہ کہا گیا تھا انتخابی مہم چلانے کے لیے وطن تشریف لائیں گے، وہ نہیں آئے، تو اس سے یہ تاثر ابھرا کہ شاید الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ورنہ میاں صاحب تو وطن واپس آ جاتے الیکشن مہم چلانے کے لیے۔ لیکن ابھی الیکشن مہم چلانے کا وقت بھی تو نہیں ہوا، ابھی تو یہ حکومت 12 اگست تک قائم ہے۔ جب یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی تو اس کے بعد میاں صاحب انشاءاللہ پاکستان میں آ بھی جائیں گے اور الیکشن کمپین کو لیڈ بھی کریں گے، اور لیڈ کرنے کے بعد خود بھی وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ ہوں گے 4تھی مرتبہ انشاءاللہ۔ تو کیا نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے بھی مشاورت ہو چکی ہے دیگر سیاسی جماعتوں سے؟ جی، تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت ہو چکی بھی ہے، ہو رہی بھی ہے۔ اچھا، دبئی میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں بڑی اہم ملاقات تھی، میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے، مریم بی وہاں موجود تھیں اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت وہاں تھی۔ تو کل فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن ہم اتحادی ہیں، لیکن ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ تو کیا اب ناراضگی ہو گئی ہے فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ کی قیادت میں؟ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان سے ناراضگیاں نہیں ہوتی، اور بلکہ یہ باتیں بعد میں سارٹ آؤٹ کر لی جاتی ہیں۔ ایسی کوئی اہم بات نہیں تھی کہ جس کے لیے وہ ناراض ہوں گے یا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بہت بڑے لیڈر ہیں اور ان کا بہت بڑا سیاسی وژن ہے۔ ہم نہیں چاہیں گے کہ ان کو ناراض کیا جائے یا وہ ناراض رہیں، تو انشاءاللہ تمام حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو دبئی ملاقاتوں میں کیا صرف نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے بات ہوئی یا دونوں پارٹیاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گی؟ اس پہ بات ہوئی ہے کوئی؟ میں اس ملاقات میں موجود نہیں تھی، اس لیے میں کوئی بیان دے نہیں سکتی کہ کس قسم کی باتیں ہوئیں یا کس قسم کی نگران سیٹ اپ پہ ہوئیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ ہوئیں۔ یہ تمام باتیں جب گورنمنٹ ختم ہوگی تو قیادت مل بیٹھ کے فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد پھر رائے عمل طے کیا جائے گا۔ اچھا، 9 مئی کے واقعات میں ظاہر ماسٹر مائنڈ عمران خان اور ان کے بہت سارے لوگ تھے، لیکن اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی تو شروع نہیں ہوئی، نہ گرفتاری ہوئی ہے ان کی، نہ اب تک کوئی اس طرح کی بات نظر آئی۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا جھول ہو کسی بات میں، اس لیے جو بھی کام ہوگا اب انشاءاللہ پکا ہوگا، اور اس پکے کام کے لیے تھوڑا وقت لگے گا لیکن کام ہو کے رہے گا۔ اور یہ جو لوگ میڈم، یہ جو لوگ پریس کانفرنس کر کے اور عمران خان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں، تو یہ لوگ بھی تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں پارٹی، یہ ان کو بہتر پتہ ہے وہ کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ جو عمران خان کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، یہ بھی انہیں کو معلوم ہوگا ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ، جو ملوث ہیں ان تمام کاموں میں، خواہ وہ پارٹی سے باہر ہیں یا اندر ہیں، میں بطور ایک سیاسی کارکن ذاتی طور پہ چاہتی ہوں کہ جس شخص نے جو کیا ہے، خاص طور پہ پاکستان کی افواج پاکستان کے لیے، اور جو کچھ کام انہوں نے پاکستان کے اندر کیا ہے، انہوں نے شہداء کی تصاویر جلائی، ان کے اسٹیچو توڑے، اور پھر لاہور میں جو قائد اعظم کا محمد علی جناح کا جو گھر تھا جو انہوں نے
आर्मी को दे रखा था उसको जलाया, घेराव किया, और जिस किस्म की हरकत उन्होंने की, खास तौर पे पिशावर की एक तारीखी बिल्डिंग थी रेडियो पाकिस्तान को, उसको भी जलाया गया। ये वो ऐसे इक़दाम हैं जिनमें जो जो मुलव्वस है उसको हकीकतन करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, कोई इस सजा से बचना नहीं चाहिए। खा वो पीटीआई की पार्टी छोड़ गया है या छोड़ना चाह रहा है या भाग गया है या अंदर है, जो भी लोग इस पे मुलव्वस हैं उन्हें सजा मिलेगी। अच्छा, सज़ा मिलेगी, बहुत सी बात है, क्योंकि करप्शन के मुकदमे में इमरान खान को बुलाया और फिर सिर्फ बुलाने पर ही उनके लोगों ने अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। लेकिन अब ज़ाहिर है इस पर बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे थे कि बहुत सारे जो लोग पकड़े गए पीटीआई के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घर चले गए, या IPP उन्होंने नई जमात जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली, तो लगता ये था कि शायद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आप भी कह रही हैं कि गवर्नमेंट फैसला कर चुकी है, जो भी मुलव्वस है वो पार्टी में है या नहीं है पीटीआई में, कार्रवाई तो होगी। नहीं, हुकूमत ने ये फैसला नहीं किया। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि हुकूमत फैसला कर चुकी है। मैंने कहा बतौर एक सियासी वर्कर, बतौर एक सियासी ओहदेदार, बतौर एक पार्लियामेंटेरियन, मैं ये चाहती हूँ कि जिसने जो किया है उसको सजा मिलनी चाहिए और किसी शख्स को बचना नहीं चाहिए, ताकि आइंदा मुल्क में मिसाल बन जाए, कोई इस किस्म की हरकत कर ना सके। ये आपके तो खैर जाहिर सियासी कारकुन का तो ये आपके तजिया है, लेकिन जाहिर गवर्नमेंट भी यही चाहती है। और कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। हुकूमत कानून नहीं रखती इख्तियारात, कानून जो है वो अदलिया के पास है और कानून अपना रास्ता बनाएगा। और जिस दिन जो कुछ किया है पाकिस्तान में, कानून ने भी देखा है, अदालतों ने भी देखा है, जजेस ने भी देखा है और पूरे अवाम ने भी देखा है और सब अदारों ने भी देखा है, तो कानून जो है उसके मुताबिक उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए। अच्छा, इलेक्शन में ताहिरा औरंगजेब साहिबा, बयानिया क्या होगा आपका कि 15 माह में जाहिर है बहुत कम वक्त के लिए गवर्नमेंट आई है, तो उसमें महंगाई में भी इजाफा हुआ है और बहुत सारे लोग ये मुसलसल बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर सियासी कारकुन, कि जी हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए था लोगों को, लेकिन जिस तरह के हालात थे उसमें रिलीफ देने में हम नाकाम रहे हैं। तो इसमें क्या बयानिया होगा, क्या कहेंगे आवाम को जाकर, वे क्यों वोट दें PDM में शामिल जमातों को या जो नून लीग को? जब हुकूमत 18 अगस्त को ख़त्म होगी ना, तो इंशाल्लाह हो चुके होंगे। अभी तकरीबन 1.5 माह बाकी है और ये वक्त से पहले कोई बयानिया नहीं बनता, वक्त आने पे बयानिया बनाए जाते हैं और बनते भी हैं। अवाम के पास इंशाअल्लाह ताला हुकूमत की पजीराई होगी, जो 13 जमातें हुकूमत इत्तेहाद में शामिल हैं, जिसे हम PDM कहते हैं। तमाम जमातों की मुश्तरका कोशिश से ये IMF के साथ मुआहदा तय पाया है, जिसमें खास तौर पर वज़ीर आज़म साहब की ज़ाती काविशें भी शामिल हैं और जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने भी बहुत मेहनत की। लेकिन हकीकत यह है कि जो 4 साल हुकूमत रही, वो जो 4 साल हुकूमत रही, उन्होंने IMF के साथ मुआहदा करके तोड़ा, उन्होंने यू टर्न लिया। पाकिस्तान का एतमाद बहाल करना इस हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा है कि उनका एतमाद बहाल हो पाकिस्तान गवर्नमेंट का, कि IMF ये सोचे कि ये लोग अब हमसे मुआहदा करके भागेंगे नहीं। और हम लोगों ने साबित किया, जो कुछ IMF ने हमसे कहा हमने वो मुकम्मल करने के बाद ये एग्रीमेंट किया और पाकिस्तान एक बार फिर IMF के प्रोग्राम में शामिल हुआ। लेकिन ये वज़ीर आज़म की भी ख्वाहिश है और पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं उनकी भी ये ख्वाहिश है कि खुदा कर IMF के साथ ये आखिरी मुआहदा हो और उसके बाद पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो सके। जी, मियां साहब के दौर में भी ज़ाहिर है माहिदा कंप्लीट किया गया था, लेकिन ज़ाहिर अब हालात इस किस्म के थे कि जाना पड़ा। लेकिन अब जितनी भी सियासी जमातें हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ कि IMF ने सियासी जमातों से भी मुलाकात की, अपोजिशन जमातों से मुलाकात की। वो चेयरमैन PTI के पास भी गए हैं और वहाँ उन्होंने एक शर्त रख दी कि जी इलेक्शन होंगे, ये ज़रूर आप बात कीजिएगा। तो IMF के दबाव तो नहीं है इलेक्शन के हवाले से किसी साल लाजमी इलेक्शन कराने? नहीं, IMF का कोई दबाव नहीं है। ये हमारी अपनी जमहूरियत चाहती है, पाकिस्तान की जमहूरी रवायात यही है। हम नहीं चाहते कोई गैर जमहूरी रवैया अपनाया जाए। इमरान खान साहब के पास IMF की टीम इसलिए गई कि वो पहले मुआहदा करके मुकर गए थे, यू टर्न ले गए थे, मुआहदा तोड़ गए थे और उसके पास इस मुआहदे के बाद उनके पास जाना भी जरूरी। बाकी ये है कि IMF ने अपनी तसल्ली की है हर सियासी जमात के कायदीन को मिल के। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन हम सिर्फ अकेले नहीं चाहते, पीपल्स पार्टी और दीगर तमाम सियासी जमातें जो PDM में शामिल है, तमाम पार्टियों का एक ही नुक्ता है कि हमें वक्त पे इलेक्शन कराने चाहिए और जिसकी भी अक्सरियत आए हमें उनके हवाले गवर्नमेंट कर देनी चाहिए। नहीं तो चेयरमैन PTI से या दूसरी जमातों से मिलने का मकसद ये था कि कोई भी जमात जो है हुकूमत में आ सकती है, तो लिहाजा उनको एतमाद मिले, IMF इसलिए गया इनके पास? ये कहा है इसलिए उनके पास गए कि वो बेतबारे हैं, वो झूठे हैं, वो यू टर्न लेते हैं,
وہ संजीदा नहीं है, वो हुकूमत करना नहीं जानते, वो अदारों से बातचीत करने के अहल नहीं है। इसलिए हो गए कि पहले भी हमसे मुआहदा करके मुकर गए, बतौर वजीर आजम ये यू टर्न ले गए, इन्होंने मुआहदा तोड़ दिया। तो अब जाके देखिए इनकी ज़हनी कैफियत क्या है, इनकी ज़हनी हालत क्या है। क्या इन्हें किसी डॉक्टर की जरूरत है या किसी अपनी टीम से ही बातचीत करके बेहतर हालात पता लग जाए। तो आप सियासी कारकुन के तौर पे आप समझती हैं कि उस वक्त जो है चेयरमैन पीटीआई की जहनी हालत दुरुस्त नहीं है? अब भी दुरुस्त नहीं है। मैं कहती हूँ शुरू दिन से लेके आज दिन तक मैं उन्हें ज़हनी तौर पे सही से ही समझती, क्योंकि जो आदमी किसी भी चीज का आदी होता है उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं रहती। तो किस चीज के आदी हैं वो? नहीं, मैं नहीं जानती, आप जानते होंगे, मीडिया वालों सबको पता है। नहीं, आपने कहा किसी न किसी चीज का जो आदी हो, अब वो मुझे ये पता है कि वो जिसके भी आदि हैं उनकी ज़हनी हालत माऊफ हो रही है, उनकी ज़हनी कैफियत माऊफ हो रही है। जो शख्स ये कहता है कि मैं पकड़ा जाऊं तो तुम लोगों ने ये करना है, जो लोगों को पेट्रोल बम बनाने सिखाए, जो जमान पार्क के अंदर उनको पनाह दे, जो उनके हाथों से पुलिस, रेंजर्स और अफवाज पाकिस्तान पर हमले करवाए, जो पाकिस्तान की तारीखी यादगारों को जलवाए, क्या ये ज़हनी कैफियत ठीक है? तो एक जहनी मरीज है तो गवर्नमेंट को इस बारे में इल्म भी है, आप जैसे लोगों को तमाम बातें पता भी हैं, फिर तो अब तक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उस सब आम को पता होनी चाहिए जो उनकी बातों में आते हैं, हम तो नहीं आते। जो उनकी बातों में आते हैं उनको पता होना चाहिए कि वो क्या हिदायत दे रहा है। क्या हमें ये हिदायत पाकिस्तान की हमायत में सुननी चाहिए? ये पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियों की हमायत कर रहा है, ये किसके इशारों पे चल रहे हैं, ये इसके पीछे कौन सी कुव्वतें कार फरमा है? ये पाकिस्तान के अवाम को सोचना होगा। अच्छा, पीटीआई के ऊपर पाबंदी के हवाले से ओन चौधरी साहब ने दरखास्त दी, आप लोग हक में हैं इस पे बतौर सियासी कारकुन के किसी जमात पर पाबंदी हो? किसने दरखास्त दी है कि जब पीटीआई पे पाबंदी हो? ये किसने एप्लीकेशन दी है? ओन चौधरी जो जमाने में बड़े करीब थे खान साहब के। ये उन्हीं को पता होगा, ये सवाल उनसे मुताल्लिक। तो गवर्नमेंट में है ना, तो ओन चौधरी साहब के पास भी होता है एक। नहीं, वो ठीक है, ओन चौधरी साहब बड़े मुतबिर आदमी हैं, ये सवाल उन्होंने किया तो आप उन्हीं से इसका जवाब लें जो वो चाहते हैं। क्या वो सही है? नहीं, वो तो चाहते हैं, आप सियासी कारकुन के तौर पर तो नहीं चाहती कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगे? अगर कोई सियासी जमात मुल्क दुश्मन हो, अगर कोई सियासी जमात मुल्क की मशीयत का बेड़ा गर्क करे, अगर कोई सियासी जमात मुल्क की नौजवान नस्ल को गुमराह करे, अगर कोई सियासी जमात पाकिस्तान के तारीखी विरसे को तबाह करे तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। ज़ाहिर हो फिर कोई भी सियासी जमात हो, पीटीआई हो या कोई भी जमात हो जिसका बयान कोई भी हो, शराइत गिनवा दी है कि अगर कोई इन चीजों में मुलव्वस पाया जाए तो बिल्कुल होनी चाहिए। और महंगाई के हवाले से जाते थे, बताइए कि क्या अगले एक माह जो बाकी है गवर्नमेंट के पास कोई इकदाम इस तरह के हो रहे हैं जिससे लगे कि आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा? जाते जाते गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ देकर जाएगी? देखिए, अभी महंगाई के लिए गवर्नमेंट जो है वो कोशिशें कर रही है गवर्नमेंट कि महंगाई के इसको किस तरह से कम किया जाए। जब बेरोजगारी का खात्मा होगा, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो लोन देंगे ज़रूरी जमीनों के लिए, वो बच्चों को जिस तरह उन्होंने ये कहा है कि बगैर सूद के लोन दिए जाएंगे, जो बेरोजगार ग्रेजुएट बच्चे हैं या मास्टर्स डिग्री हैं या जो अभी इतने तालीम याफ्ता नहीं है लेकिन बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी के खात्मे के लिए गवर्नमेंट ने बहुत फंड रखे हैं, अरबों रुपए रखे हैं। ज़रूरी जमीनों को भी काबिल काश्त बनाने के लिए वो कर्ज ले सकते हैं और ये तमाम कर्जे बिला सूद हैं। इससे नौजवान नस्ल जब बेरोजगारी का खात्मा करेगी तो फिर महंगाई इतनी महसूस नहीं होगी जैसे अब महसूस होती है। जब घर में बीमारी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, तो फिर तो सब मुझसे ऐसा सबको कमी करेंगे। और अभी एक माह में आप देखेंगे इलेक्शन जाने से पहले इंशाल्लाह बहुत बड़ी तब्दीली आई। यानी एक माह में ये सब कुछ गवर्नमेंट कर देगी इंशाल्लाह। जादू की छड़ी तो हमारे हाथ में नहीं, जो 4 साल वाले हम तबाही करके गए हैं। रफ्ता रफ्ता कोशिशें जारी हैं सबकी, तमाम सियासी जमातों की, और इंशाल्लाह पाकिस्तान इस माहौल से निकलेगा, माशी तौर पर बेहतर होगा। माशी तौर पर बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। ताहिरा औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बात कर रही थी कि जनाब इस गवर्नमेंट की कोशिश है कि एक माह जो रह गया इस गवर्नमेंट का उसमें आवाम को रिलीफ दिया जाए। ख़ास तौर पर महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। और दूसरी बात जो फजल रहमान साहब ने जो कुछ कहा, और उन्होंने ये कहा कि दुबई में जो नवाज शरीफ साहब, मरीम बीबी और पीपल्स पार्टी का आला क़यादत के दरमियान जो मुलाकातें हुई हैं उस हवाले से जो एतराज़ात किए या नाराज़गी का इजहार किया है मौलाना फजल रहमान साहब ने, उनका इतनी बड़ी बात नहीं है ये, और मौलाना साहब से बात करके उनको एतमाद में भी ले लिया जाएगा, मना भी लिया जाएगा। क्योंकि और निगरान सेटअप के हवाले से उन्होंने कहा कि मशावरत हो चुकी है और इस बात पर भी मशावरत हो चुकी कि इलेक्शन होने हैं अक्टूबर नवंबर में, गो के
وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا بیان بھی آیا اور انہوں نے کہا کہ اکتوبر میں گرمی ہوتی ہے تو شاید نومبر میں کرا دیے جائیں، لیکن اکتوبر نومبر میں الیکشن کے حوالے سے اب آہستہ آہستہ یہ باتیں کنفرم ہو رہی ہیں۔ اس گورنمنٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہم مدت پوری کر کے گھر چلے جائیں گے، نگراں سیٹ اپ ہوگا، اور نگراں سیٹ اپ کے ظاہر آتے ہی الیکشن کرانے کے لیے تو اکتوبر نومبر میں الیکشن کرا دی جائیں۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد مزید اسی پہ بات کریں گے، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے نیوز ویوز۔